شامل کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کی جانب، جہاں ہمارے ڈسٹرکٹ نامہ نگار غلام شبیر اشاری کی رپورٹ کے مطابق تحصیل کوٹ چھٹا حلقہ پی پی 290 مسلم لیگ نون کے امیدوار سردار علی یوسف خان لغاری کی حمایت میں خارپور مجرووالا کے رہائشیوں نے بھرپور حمایت کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جن میں سے کچیلا برادری میں سے سردار محمد شفیق خان کچیلا، میاں برادری میں سے میاں محمد نصیر احمدانی، برادری میں سے سردار محمد اقبال خان احمدانی، بھٹا برادری میں سے سردار محمد حسین خان بھٹا رمدانی، برادری میں سے منیر احمد خان رمدانی، الیانی برادری میں سے سردار محمد مجید خان الیانی، علی خان رمدانی، پیر سید ڈاکٹر ذوالفقار علی شاہ، حجانہ برادری سے حاجی غلام عباس خان حجانہ، حاجی منور حسین احمدانی، محمد اقبال خان احمدانی، حاجی غلام نبی خان کچیلا، چودھری طاہر خان سردار صابر حسین بٹی، فوجی غلام حیدر خان گوپان، غلام عباس خان گورچانی اور برادریوں کے سربراہوں نے شرکت کی۔ آخر میں پیر سید مظہر حسین شاہ دعا کرائی کہ اللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون کے امیدوار سردار علی یوسف خان لغاری کو کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کی جانب، جہاں ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف غلام شبیر اشاری کی رپورٹ کے مطابق وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کا بڑا اقدام، نان فارمل اسکولوں کے اساتذہ کو 20 سے 30 دن میں گزشتہ 10 ماہ کی تنخواہوں کی ادائیگی کا اعلان۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات سے نان فارمل اسکولوں کے اساتذہ کی ملاقات۔ اساتذہ نے وزیر تعلیم کو اپنے پیشہ ورانہ مسائل اور مشکلات سے آشکار کیا۔ اساتذہ نے وزیر تعلیم کو گزشتہ 10 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے بارے بھی آگاہ کیا۔ اساتذہ کی وزیر تعلیم سے تنخواہوں کے معاملے پر فوری ایکشن لینے کی درخواست۔ وزیر تعلیم کا سیکرٹری نان فارمل ایجوکیشن سے رابطہ، معاملے کی حساسیت پر تفصیلی مشاورت۔ وزیر تعلیم کی سیکرٹری لٹریسی کو مسئلے کے فوری حل کے لیے ہنگامی اقدامات کی ہدایت۔ آئندہ 20 سے 30 دنوں میں اساتذہ کو تنخواہوں کی ادائیگی یقینی بنائی جائے گی۔ اساتذہ کے مسائل کا بروقت ازالہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مسائل سے آگاہی کے لیے ٹیچر کمپلینٹ پورٹل اور سٹیزن کمپلینٹ پورٹل پر کام جاری ہے۔ اساتذہ کے ساتھ گزشتہ 5 سالوں میں ہونے والی زیادتیوں کے ازالہ تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اساتذہ کے مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ رانا سکندر حیات اساتذہ کی تنخواہوں سمیت دیگر مسائل کے ازالے کے لیے ہر فورم پر اقدامات کیے جائیں گے۔ گزشتہ حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے اساتذہ 10 ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں۔ تعلیمی سسٹم سے عثمان بزدار اور مراد راز کے اثرات ختم کریں گے۔ آج مورخہ 16 اپریل 2024 کو جواد اور فواد کے گھر میں سیلاب کا پانی داخل ہوا تو وہ گھر کا سامان نوشہرہ امان گڑھ سے نظام پور لے جا رہا تھا۔ سید وکیل موڑ پر بوقت تقریباً 1 بجے رات کی تاریکی کے وقت 3 نقاب پوش بندر، جس میں ایک کے ساتھ کلاشنکوف اور 2 کے ساتھ پستول تھے، اور ڈکیت گروپ نے روڈ پر پتھر رکھ کر بند کیا تھا۔ گاڑی ڈرائیور اور ساتھ میں 3 بندے جو گاڑی میں تھے، ان سے موبائل اور پیسے چھین کر گاڑی میں موجود چھوٹے 3 بیگ میں سے ایک بیگ کو تالا لگا ہوا تھا، جس میں ایک یتیم بچے کا حق مہر اور زیورات وغیرہ تھے۔ اس بیگ کو بلیٹ یا چھری یا دیگر آلہ کے ذریعے پھاڑ کر سامان ڈکیت گروپ اپنے ساتھ لے گئے۔ پھر کچھ ٹائم بعد ڈرائیور اور دیگر سید وکیل کے گاؤں کے جاننے والے لوگوں کے گھروں میں جا کر اپنے گھروں کو فون کر دیا۔ اطلاع ملتے ہی ولیج کونسل سیکرٹری عمران جمال اور حمید اللہ HBL آپریشن مینیجر اپنے گاؤں کاہی سے نظام پور پولیس کے ہمراہ گئے، اور پھر ملنگ بابا چوکی پولیس بھی آئی اور ان کی مشترکہ کارروائی تمام سامانوں کا جائزہ لیا اور کارروائی شروع کر دی۔ تو اس سلسلہ میں اعلیٰ حکام سے سخت کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں اور ڈکیت گروپ کی گرفتاری کا اعلیٰ سطح پر مطالبہ کرتے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں صادق آباد سے۔ ہمایوں نمائندے جام طالب حسین کی رپورٹ کے مطابق گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول بھونگ شریف کے قابل ترین استاد اور سینئر ٹیچر ملک محمد اعظم نے 37 سال نوکری اور 60 سال عمر پوری ہونے پر اپنے عہدے سے ریٹائرڈ ہو گئے۔ سب سے بڑھ کر ایک ہی اسکول میں اپوائنٹمنٹ اور ایک ہی اسکول میں ریٹائرمنٹ، ان کو یہ اعزاز حاصل ہوا جنہوں نے اپنی نوکری کے دوران ہزاروں کی تعداد میں طلباء کو تعلیم دی، اور ان کی تعلیم کی وجہ سے آج ان کے شاگرد بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں۔ 11 اپریل کو ریٹائرڈ ہونے والے ٹیچر ملک محمد اعظم کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد 15 اپریل کو کیا گیا، اور سینئر ٹیچر ملک محمد اعظم کا بھرپور استقبال کیا گیا اور ان کو اسکول بازار سے لے کر
स्कूल तक सैकड़ों की तादाद में साबिका शागिर्द शहरी और मौजूद तलबा साजा ने इनको वेलकम किया, माला पहनाई, फूलों की पत्तियां निछावर की और अपने स्कूल तक फूलों की पत्तियां निछावर करते रहे। और इस मौके पर सीनियर टीचर मलिक मोहम्मद आजम ने खिताब करते हुए कहा कि सबसे बढ़कर तलबा को मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि जो बच्चे अपने वालिदैन और साजा के एहतराम और कदर करते हैं वो हर मैदान में कामयाब हो जाते हैं। और मेरा इनको ये पैगाम है कि अपने वालिदैन और साजा कराम का एहतराम करें और तालीम में दिलचस्पी लें ताकि आने वाले वक्त में एक अच्छे शहरी और अच्छे मौजूद शख्सियत बनकर उभरें और अपने मुल्क और साजा अपने वालिदैन का नाम रोशन करें। और साजा से भी गुजारिश है कि अपने तलबा को अपने बच्चों की तरह टाइम दें और इनको तालीमी कमियां जो हैं इनकी पूरी करें और इनकी हेल्प करें, क्योंकि हम लोग बच्चों को पढ़ाने की तनख्वाह लेते हैं। हमारा फर्ज है कि हम अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से सर अंजाम दें और ड्यूटी के दौरान कोई गफलत ना बरतें, क्योंकि ये बच्चे हमारे मुल्क के ममार हैं और आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल हैं। आम कोशिश करें कि अपना फर्ज अदा करें और बच्चों को तालीम देने में कोई कसर ना छोड़ें। इस मौके पर स्टाफ की तरफ से सीनियर टीचर मलिक मोहम्मद आजम को तोहफे भी दिए गए और मलिक मोहम्मद आजम ने तमाम स्टाफ और तमाम मोअज़्ज़िज़ीन शहरी और तमाम तलबा का शुक्रिया अदा किया और इन्होंने कहा है कि मैं जो मेरा इस्तकबाल किया गया है और मुझे जो इज्जत बख्शी गई है इंशाअल्लाह जिंदगी भर याद रखूंगा और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम तलबा को अपने मैदान में कामयाबी कामरान अता फरमाए, आमीन। इस मौके पर प्रिंसिपल स्कूल हज़ा मोहम्मद आसिफ अंजुम, सईद हसन, सरदार मोहम्मद अजहर, मलिक मुश्ताक अहमद, मोहम्मद जफर मसूद अहमद क्लोर ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं फूलनगर से। फूलनगर डीपीओ कसूर तारिक अजीज सिंधु की हिदायत पर थाना सदर के एसएचओ डॉक्टर जुल्फकार और चौकी इंचार्ज दीनानाथ इंजीनियर आमिर आजम उर्फ बाबा डकैत गैंग को 3 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया, जिनकी कब्जा से लाखों रुपए नकदी, नाजायज असला और मोबाइल फोन बरामद। अहले इलाका का पुलिस को जबरदस्त खराज तहसीन। फूलनगर डकैत गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार। डीपीओ कसूर तारिक अजीज सिंधु और डीएसपी पतोकी मोहम्मद इरफान बट की हिदायत पर थाना सदर फूलनगर पुलिस की एसएचओ डॉक्टर मोहम्मद जुल्फकार और चौकी इंचार्ज इंजीनियर आमिर की सरबराही में कार्रवाई मुल्तान रोड और लिंक रोड पर राजधानी की वारदातों में मुलव्वस आजम उर्फ बाबा डकैत गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जा से शहरियों से छीनी गई 1.5 लाख रुपए की रकम, मोबाइल फोन और असला बरामद। मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश फूलनगर और गिरदनवा में 10 से ज्यादा संगीन वारदातों का इंकशाफ किया है। मजीद तफ्तीश जारी है। डीपीओ कसूर तारिक अजीज सिंधु ने अच्छी कारकर्दगी पर थाना सदर फूलनगर पुलिस को शाबाश दी। अहले इलाका ने पुलिस को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। खबर शामिल करते हैं भक्कर से। हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान औलख की रिपोर्ट के मुताबिक साहबजादा डॉक्टर पीर सैयद महमूद अहमद हसनैन आगा शिराजी गदी नशीन दरबार आलिया पीर सैयद मोहम्मद दरबार बादशाह शिराजी रहमतुल्लाह अलैहा सरपरस्त आला मनहाजुल कुरान जिले सदर पाकिस्तान अवामी तहरीक डिवीजनल नायब सदर पाकिस्तान अवामी तहरीक डॉक्टर मुश्ताक अहमद हबीबुल्लाह गोरचा एडवोकेट दीगर ओहदेदारान मनहाजुल कुरान पाकिस्तान अवामी तहरीक ने गैर मशरूत तौर पर डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला उम्मीदवार पीपी 93 की हिमायत और मुकम्मल इलेक्शन कैंपेन चलाने का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला, साबिक सूबाई वजीर नईमुल्लाह खान शहानी, मोहम्मद जियाउल्लाह खान सहाफियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। जुमा खान साहबजादा डॉक्टर पीर सैयद महमूद अहमद हुसैन आगा शिराजी ने अपनी रिहाइशगाह पर अपने दोस्त अहबाब अकीदतमंदों मरीदों और कारकुनान और डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला उम्मीदवार पीपी 93 दीगर अहबाब की मौजूदगी में डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान करते हुए कहा कि हम अपनी पूरी ताकत और भरपूर हिमायत से वुमेन लीग, उलमा कौंसिल, यूथ लीग, मुस्तफी स्टूडेंट्स और दीगर विंग के हमरा इनकी इलेक्शन कैंपेन भी करेंगे। तकरीब के आखिर में डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला उम्मीदवार पीपी 92 ने तमाम शुरका महफिल का साथ देने पर साहबजादा डॉक्टर पीर सैयद महमूद अहमद हुसैन आगा शिराजी, जुमा खान, डॉक्टर मुश्ताक अहमद, दीगर ओहदेदारान मनहाजुल कुरान पाकिस्तान अवामी तहरीक का खसूसी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इनके घराने से हमारा ताल्लुक अकीदत और एहतराम का है। इंशाअल्लाह जीत के बाद कोशिश करेंगे कि इनके मयार पर पूरा उतर सके। अंसारी हाउस पीटीआई डडियाल आजाद कश्मीर के मरकजी रहनुमा तैयब अहमद अंसारी की तरफ से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें पीटीआई डडियाल के ख्वाजा मोहम्मद आरिफ, चेयरमैन चौधरी आरिफ, चेयरमैन ज़कात कमेटी डडियाल शाहरूम भट्टी, दाऊद अहमद चुगताई, कौंसलर असरार मजहर अंसारी, साबिक उम्मीदवार कौंसलर्स ख्वाजा अमजद आरिफ, ख्वाजा खालिद, ख्वाजा शिराज नजीर, जुबैर आजम और राकिम की शिरकत मौजूदा पाकिस्तान और आजाद कश्मीर की सियासी सूरत-ए-हाल पर खसूसी गुफ्तगू-ओ-शनीद। आखिर में रहनुमा पीटीआई तैयब अहमद अंसारी ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। वो अपना कीमती वक्त निकाल कर इनकी दावत में शरीक हुए।
खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। सांगड़ के इलाका नजामानी मोहल्ला वार्ड 2 ब्लॉक नंबर 4 में मोहम्मद सलीम के 2 बेटों और मोहम्मद सलीम पर कातलाना हमला किया गया, जिस पर मोहम्मद सलीम की आंखों के लेंस टूट गए और मोहम्मद सलीम मलिक आंखों से नाबीना हो गए और इनके 2 बेटों नासिर और आदिल शदीद जख्मी हो गए। दोनों की हालत सीरियस है, जिन्हें मोहम्मद सलीम के बड़े भाई रियासत अली के बेटों शाहिद जाहिद आबिद आसिफ साजिद काशिफ राशिद साकिब मलिक ने शदीद जख्मी कर दिया और इनके बेटों पर तशद्दुद किया और हथियारों का वार करके हड्डियां तोड़ दी और शदीद जख्मी कर दिया गया और ट्रेसिंग पासिंग की गई। साबिका वफाकी वजीर सन्नत तजारत और तांदेवाला हल्का N97 से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार हुमायूं अख्तर खान से सीनियर सहाफी मोहम्मद मुश्ताक राजपूत की क़यादत में सहाफी बरादरी की खुसूसी मुलाकात, मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा शाहिद इकबाल खिची तहसील रिपोर्टर तांदलियावाला की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वजीर सन्नत और तजारत उम्मीदवार 97 से इनके डेरे पर सीनियर सहाफी मुश्ताक राजपूत की क़यादत में मीडिया नुमाइंदों की खुसूसी मुलाकात। इस मौके पर हुमायूं अख्तर खान ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा है कि मुल्क इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है, मुआशी तबाह हाल हो चुकी है, महंगाई एक माशरे का नासूर बन चुका है। ऐसे हालात में हुक्मरानों को दुरुस्त सिमत में मुल्क और कौम की सलामती और मईशत के लिए दानिशमंदाना इकदाम उठाने होंगे। अगर हुक्मरानों ने अपनी रूश न छोड़ी तो मुल्क और कौम गंभीर हालात में फंसे रहेंगे। हुक्मरानों को अयाशियां खत्म करके महंगाई के खात्मा के लिए इनकलाबी इकदाम करने चाहिए। उन्होंने कहा है कि मैंने इलेक्शन में अपने हल्का के अवाम से जो वादे किए हैं इस पर कारबंद हूँ। इंशाल्लाह अवाम से राब्ते में हूँ और इसी तरह राब्ते में रहूंगा और जो अवाम के मसाइल के लिए बन पाया इंशाल्लाह वो आवाज उठाता रहूंगा। मैं इंशाल्लाह कहीं नहीं जा रहा, मेरा जीना मरना अपने हल्का की अवाम के साथ है। हमारे दरवाजे अपने हल्का की अवाम के लिए हमेशा खुले हैं। इस मौके पर सीनियर सहाफी अब्दुल खालिक जलानी समेत दीगर मीडिया नुमाइंदे भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं जिला भावनगर की तहसील फोर्टाबाद से। मौसम कंडियाला की रिपोर्ट के मुताबिक अकील अहमद और मौसम कंडियाला का डीएसपी फोर्टाबाद इमरान सदीकी के साथ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सेंटर गवर्नमेंट हाई स्कूल फोर्टाबाद का विजिट सिक्योरिटी इंतजामात और अमन की सूरत हाल का जायजा लिया और डीएसपी इमरान सदीकी का कहना था कि जो बंदा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसों से कटौती करेगा इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और रिटेलर्स ने भी मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा मौसम कंडियाला की रिपोर्ट के मुताबिक। जी मौसम कंडियाला बताइएगा। में मौजूद हूँ जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे जारी हो रहे हैं और यहाँ जो कटौती वगैरह हो रही है। आज मेरे साथ डीएसपी फोर्टाबाद मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि इनका विज़िट करने का मकसद क्या है और इनको वीडियो को तहफ़्फ़ुज़ वगैरह दिवाने का जिस मामले की। सर आप यहाँ आए हैं तो आपका आने का मकसद वगैरह तो आप सबसे पहले तो हमारा ये है कि यहाँ पर सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स ये चेक करने के किसी किस्म का कोई ऐसा वाक़या वगैरह पेश ना हो। सेकेंडली हमें ये भी चेक करना होता है कि कोई किसी किस्म की जो इस प्रोग्राम में किसी किस्म की कटौती तो नहीं कर रहा, किसी किस्म की किसी अरेंजमेंट्स हैं जिसे तकलीफ तो नहीं है हमारी बहनों को। अल्हम्दुलिल्लाह ये स्मूथली प्रोग्राम चल रहा है। अभी तक किसी किस्म की कोई हमें कंप्लेंट नहीं आई कि किसी ने ये जो रिटेलर्स हैं उन्होंने किसी किस्म के कोई पैसे काटे हों या किसी से कटौती कर रहे हो या इनके साथ मिसबिहेव कर रहे हो। सर अगर ये जो कोई आपके पास प्रूफ हो हमारे पास या कोई भी बंदा आपको अगर दिखाए तो आप आवाम को क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या प्रूफ दिखाएं तो आप इनको एक्शन करें। इंशाल्लाह हमें फौरी इतला दें, हम जो कानूनी कार्रवाई है उनके खिलाफ फौरी करेंगे। यहाँ हमारे अपने सिक्योरिटी के इदारे भी हैं, मुख्तलिफ लोग भी हैं, हम अपने तौर पर अपने सोर्सेज से भी मालूम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक फोर्टाबाद में जो ये हमारे रिटेलर्स हैं इनके हवाले से में कोई किसी किस्म की शिकायत सामने नहीं आई। सिक्योरिटी के भी हमने बेहतरीन इंतजाम किए हुए हैं और ये मामला ठीक चल रहे हैं। जी आज ये जैसे हमारा प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि आज हमारे साथ डीएसपी साहब भी मौजूद थे और जो कहते हैं कि बीबियाँ जलील होती हैं माशाल्लाह। हम आपको दूसरे भी दिखाएंगे। इसी तरह अगर ऑफिसर इसी तरह दौरा करते रहें, चेकिंग करते रहें तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से कोई बंदा जलील नहीं होगा। और मैं ये डीएसपी साहब से गुजारिश भी करूँगा कि ये दूसरे इदारे भी माशाल्लाह इसी तरह चेक करें और हम देखते रहते हैं कि ये ऐसे ही चेक होते हैं और हम इस तरह के प्रोग्राम आपको दिखाते रहेंगे हमारे साथ।
खबर शामिल करते हैं नारंग मंडी से अपने नुमाइंदा मोहम्मद नसीर मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक मोहल्ला मोहम्मदपुरा पार्क की ताज़ीन और आराइश और हिफाजत के लिए एक मुशावरती इजलास पार्क में मुनक्किद हुआ, जिसमें जल्द ही बाहमी मुशावरत से एक कमेटी तश्कील दे दी जाएगी जो कि पार्क इंतजामी अमूर की देखभाल करेगी। इजलास में मियां अमजद अली, शफीक अहमद भट्ट, मोहम्मद जावेद भट्ट, सफदर अली खोखर, जमशेद अली, मोहम्मद राशिद बिलाल मनहास, मोहम्मद शफीक खोखर, मुश्ताक अहमद खोखर, असलम तरकिया वाले, हाजी ताहिर मलिक, अफजाल मनहास, अब्दुल्ला जावेद पाशा और दीगर अहले मोहल्ला ने शिरकत की। इजलास में एक अहम मसले की तरफ भी तवज्जो दिलाई गई। कुछ शिकायत थी कि कुछ आवारा लड़के पार्क के अमन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इनका सदेबाब भी किया जाएगा। इजलास में मर्द हजरात से अपील की गई है कि वो औरतों वाली पार्क में जाने से इज्तनाब करें, खिलाफ वर्जी करने वाले को हवाला पुलिस किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं हमारे ओन न्यूज के रिपोर्टर मियां अंसर वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार 223 ग्रुप की तरफ से फलस्तीन के हक में एक रैली निकाली गई, जिसमें सरकार 223 ग्रुप के चेयरमैन चौधरी अबूजर, शेख सैफुल मलूक राना, इबाद अली, हाफिज अबूबकर, सरदार बदर की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह फलस्तीन के लिए एक पुरअमन रैली। अल्लाह की मदद से इसराइल का वजूद इस दुनिया से जल्द मिट जाएगा और फलस्तीन को फतह नसीब होगी। चेयरमैन चौधरी अबूजर का फलस्तीन की रैली के मौका पर कहना था कि मैं और मेरी पूरी टीम जहाद के लिए तैयार हैं। हम अपने मुसलमान भाइयों पर कभी जुल्म नहीं होने देंगे और इनके लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। अब रुक करते हैं रनाला खुर्द का, जहां पर हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हाजी असलम सजाद की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ काड़ा मंसूर अमान राना की हिदायत के मुताबिक एसडीपीओ रनाला सर्कल की ज़ेरे निगरानी एसएचओ थाना सदर की कामयाब कार्रवाई, जवेद उर्फ जेदी डकैत गैंग साथियों समेत गिरफ्तार। रिपोर्ट मुलाहजा कीजिए। थाना सदर रनाला खुर्द की कामयाब कार्रवाई, जवेद उर्फ जेदी डकैत गैंग साथियों समेत गिरफ्तार। एसएचओ थाना सदर रनाला खुर्द मेरा बनवाज वट्टू ने अपनी टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई करते हुए जवेद उर्फ जेदी डकैत गैंग को 4 से साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 3 लाख रुपए नकद, 13 मोटरसाइकिल, नाजायज़ असला, 2 पिस्टल, एक 12 बोर बंदूक और गोलियां बरामद कर ली। एसएचओ थाना सदर रब नवाज वट्टू का कहना था कि डकैत गैंग दौरान तफ्तीश 25 वारदातों में का इंकशाफ उन्होंने किया। जवेद उर्फ जेदी डकैत गैंग ज़िला भर के अलावा दीगर अजला में भी डकैती करने की वारदातों को तस्लीम किया है। कैमरा टीम के साथ असलम सज्जाद और न्यूज़ रनाला खुर्द। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लाचारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर थाना सिटी राजनपुर की हदूद में घरेलू नचाकी पर खामद ने बीवी को गोलियां मारकर शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस ने मुलजिम वसीम को गिरफ्तार कर लिया है और खातून को तिब्बी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल राजनपुर मुंतकिल कर दिया। मुलजिम वसीम ने पुलिस को बताया कि मेरी बीवी के गैर मर्दों के साथ नाजायज ताल्लुकात थे, जिसे 3 फायर मारकर कत्ल करने की कोशिश की है। पुलिस ने मुलजिम वसीम के कब्जा से असला, नाजायज पिस्टल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया है और मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद जिला इंतजामिया के महंगे दामों रोटी और नान फरोख्त करने वाले के खिलाफ कार्रवाइयां। 19 नान बाइयों और होटल मालकान को 43,000 रुपए जुर्माना किया गया। डिप्टी कमिश्नर सुंदर सरशाद महंगे दामों रोटी फरोख्त करने पर एक नान बाई गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। डिप्टी कमिश्नर महंगे दामों रोटी और नान फरोख्त करने वालों के खिलाफ हाफिजाबाद सिटी, पिंडी भट्टियां, वनीके तारर, जलालपुर भट्टियां, सिखेकी और दीगर इलाकों में कार्रवाइयां की गई हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के अवामी रिलीफ विजन के तहत रोटी और नान की कीमतों में कमी की गई है। रोटी की कीमत 15 रुपए और नान की कीमत 20 रुपए मुकर्रर की गई है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट महंगे दामों रोटी और नान फरोख्त करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां कर रहे हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कार्रवाइयों का मकसद अवाम को सस्ते दामों रोटी और नान के जरिए रिलीफ फराहम करना है। जमात इस्लामी के सूबाई रहनुमा चौधरी जाहिद इमरान खरोटाना एडवोकेट गुज़िश्ता दिनों साहिब कराम की शान में होने वाली गुस्ताखियों पर अपना रद्द अमल पेश करते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से नारंग मंडी में मुसलसल सहाबा कराम और अहले बैत के बारे में लोग ज़बानी का जो है मामला वो बढ़ता जा रहा है। तो एक तो मैं उसकी पुरज़ोर मजम्मत करता हूँ और इस ऊपर एहतजाज करता हूँ कि ऐसे लोगों को जो इलाके का अमल ख़राब करना चाहते हैं उनको कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। और दूसरी मेरी दरख्वास्त होगी अमन कमेटी के ज़िम्मेदारान से कि जिस तरह उन्होंने पहले वाक़े के ऊपर एक अपना मौसर किरदार अदा किया था, अब भी ये सारे मिलकर जो अंजुमन शहरियान है, अमन कमेटी है, उनके जो सरबराह हैं अमन कमेटी के, इन्होंने माशाल्लाह पहले में अच्छा रोल अदा किया था। इसके ऊपर वो आगे बढ़कर इस मामले को टेक ओवर करें, क्योंकि ये मामला अगर लोकल कम्युनिटी मिलके हल करेगी तो फिर ये इसके ऊपर आसानी से इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है।
वरना अगर ये मुकाबले की सूरत बन गई तो फिर दोनों तरफ से अगर ये कुछ लोगों ने शरपसंदी शुरू कर दी तो फिर मामलात मुल्क के भी ख़राब होंगे और इस्लाम को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और इस वक्त हमें मुतहद रहने की, जिस तरह आलम कुफर जो है वो इस्लाम के ऊपर दावा बोल के बैठा हुआ है अल-अक़सा के ऊपर, और इस मौके के ऊपर मैं समझता हूँ कि उम्मत को इकट्ठे होना चाहिए और ये जो मुल्क के अंदर, ये उम्मत के अंदर फितना फसाद फैलाना चाहते हैं, हम उसकी पुरज़ोर मरम्मत करता हूँ मैं, और इनसे बचने की हमें कोशिश करनी चाहिए और इसको जिस तरह भी मुमकिन हो इसको दबाने की कोशिश करनी चाहिए। सजावट से खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ अशर जट के मुताबिक जाती चौक बड्डू टालपुर में मंशियात बंद ना हो सकी, जबकि आईजी सिंध एसएसपी सजावल ने मंशियात खोरों के खिलाफ सख्त ऑर्डर जारी किए हैं। इनके बावजूद जाती चौक बड्डू टालपुर में सरेआम चलने वाली गुटखा, शराब, आइस, अफ्यूम, मेनपुरी, मावा इंडियन से आने वाली सफीना सरेआम फरोख्त की जा रही है, जबकि जाती चौक बड्डू टालपुर पुलिस सिर्फ मंशियात खोरों से हफ्ता लेने में मसरूफ है। हम पुरजोर अपील करते हैं एसएसपी अब्दुल खालिक पीरजादा, सीआईए पुलिस सजावल से खुदारा नोटिस लेकर डिस्ट्रिक्ट सजावल जाती चौक बड्डू टालपुर के नौजवानों को मंशियात जैसी लानत से बचाया जाए, जबकि जाती चौक बड्डू टालपुर की आवाम का आईजी सिंध, डीआईजी हैदराबाद, एसएसपी सजावल, सीआईए पुलिस सजावल से नोटिस लेकर कार्रवाई की अपील। सरेआम चलने वाली इस जहर को बंद करा के नौजवान नस्ल को बचाया जाए। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से तरंडा मोहम्मद पनाह और गिरदनवा में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। रोज बरोज बढ़ती महंगाई शहरियों के लिए दर्द सर बन गई है। तरंडा मोहम्मद पनाह में मुर्गी की ऊंची उड़ान, मुर्गी का रेट आसमान से बातें करने लगा। चिकन का गोश्त 700 रुपए फी किलो से तजावज करके 750 रुपए फी किलो तक पहुंचा। शहरियों के लिए सस्ती प्रोटीन लेना भी ख्वाब बनता जा रहा है। शहरियों का कहना है कि मटन और बीफ तो पहले ही हमारी कुव्वत खरीद से बाहर, अब मुर्गी का गोश्त लेना भी हमारे लिए दुश्वार बनता जा रहा है। सब्जियां और दालें भी महंगी हैं। आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल होता जा रहा है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से महंगाई में कमी लाने और मुर्गी का गोश्त सस्ता करने का मुतालबा किया है। डिस्ट्रिक्ट सजावल से खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ अशर जट की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट सजावल पुलिस ने जराइम अनासिर मंशियात खोरों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाइयां की हैं, जबकि जराइम अनासिर मंशियात खोरों को हाफ फ्राई करके गिरफ्तार किया जा रहा है। जाती चौक बड्डू टालपुर की आवाम ने एसएसपी अब्दुल खालिक पीरजादा, सीआईए पुलिस सजावल से अपील की है कि जाती चौक बड्डू टालपुर के मंशियात खोर या जो जराइम अनासिर हैं इनको भी हाफ फ्राई करके गिरफ्तार किया जाए। जाती चौक बड्डू टालपुर की सबसे बड़ी मंशियात फरोश मंशियात स्मगलिंग करने वाली, जिनमें हाजी मूसा खिच्ची, इसहाक खिच्ची, गुलाम मुस्तफा खिच्ची, हनीफ खिच्ची, खैर मोहम्मद जट, जम्मू जट, अब्दुल करीम खास के लिए, जुम्मन शाह, हबीब ठहरानी, हुसैन मलाह, मीर हसन रिंद हैं। एसएसपी अब्दुल खालिक पीरजादा, सीआईए पुलिस सजावल नोटिस लेकर कार्रवाई करें। खबर शामिल करते हैं गैम्बर से। गैम्बर में पुलिस चौकी गैम्बर के चंद कदम के फासले पर दिन दहाड़े डकैती की वारदात। 2 नामालूम अफराद ने अस्ता के जोर पर जीटी रोड पर हबीब बैंक के नजदीक बगैर नंबर होंडा 70 मोटरसाइकिल सवार असला से लेस डाकू ने माशाल्लाह शॉपिंग बैग की शॉप पर जबरदस्ती घुसकर दुकानदार एहसन अली, आदिल हुसैन बाजवा को तशद्दुद का निशाना बनाकर जबरदस्ती 1,70,000 नकदी गन पॉइंट पर लेकर डाकू जानिब साहिवाल फरार हो गए। इलाका में खौफ व हरास फैल गया। पुलिस चौकी की एमसी पेट्रोलिंग न होने के बराबर पेट्रोलिंग होती तो डकैती न होती। एसएचओ थाना यूसुफ वाला को चाहिए कि एमसी पेट्रोलिंग यकीनी बनाया जाए ताकि मजीद वारदातों से बचा जा सके। पेट्रोलिंग के जरिए डाकू पकड़े जा सकते हैं। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से। लियाकतपुर थाना तबस्सुम की हदूद चक नंबर 13 बासिया में दूध फरोश सईद नामी दूध फरोश का रकम ताखीर से देना जुर्म बन गया। रमजान नामी शख्स का दूध की अदालत लगाते हुए दूध फरोश पर डंडों से तशद्दुद वीडियो मौसूल हो गई। मोटरसाइकिल पर बैठे दूध फरोश पर तशद्दुद होते हुए वीडियो में देखा जा सकता है। दूध फरोश का कहना है कि रमजान नामी शख्स से दूध उठाता था, रकम ताखीर से देने पर डंडों से तशद्दुद करने लगा। एसएचओ थाना तबस्सुम शहीद का कहना है कि कानून शिकन अफराद को पाबंद सलासल किया जाएगा।